Today my cat is also here. He is sleeping. So let's start. Hi everyone. In this session we have with us Rich Amrute, who secured All India rank 67 in GATE CS 2026. Rich prepared with college. With final year, he cracked both GATE CS and GATE DA. In GATE DA 2026, he secured All India rank 311. So you can ask your doubts. You can put your doubts in the chat, or you can raise your hand and then you can unmute and you can speak and you can ask your doubts. Okay. So first, let's hear from Rich. Hello, Rich. You can unmute. Am I audible, everyone? Yes, Rich. Yes, Rich. Okay. So, hello everyone. My name is Rich Amrutia, and I secured All India rank 67 in CS and T11 in this year. But my journey not comes with this year. I also prepared for third year. So yeah. So first, Krishna Rao ka doubt hai. Could you please share your preparation journey? Okay. So I say a little bit about my journey. Back in my fourth semester, I decided to go for GATE. Then I started GATE preparation with Go classes. Then I started my preparation in back in my May 2024 in my third year. So I also appeared for third year in GATE. Then I got something around 4,000 rank in GATE CS and somewhere around 6.5 thousand in GATE DA. Then I again prepared for GATE in my fourth year. Then I also improve many things during my preparation, which I uh, uh, not done well in my previous attempt. And then I secured this both rank in 2026. So this is the overall journey. But whenever you ask doubt, then I tell about my approach also. So then you will recall my journey as well. So yeah, then just ask doubt, then we will discuss further about it. So, Rich, students will ask their doubts in the live chat. So, everyone, if you have any doubts to ask, if you want to discuss anything with Rich, then please put in the chat or you can raise your hand. Okay. So, before that, Rich, please share with us about your notes. See, many students are saying that your handwritten notes, they are very helpful. So, for context, let me tell all the students that we have uploaded rich handwritten notes of GATE CS subjects. So if you are Go Classes complete course enrolled student, then you can find rich notes, and these are written from the Go Classes lectures. And I've got this type of feedback that rich notes are so nice that okay, if there is a subject for which you did not provide the notes, then they were asking that for this subject also please provide rich notes. Okay, I shared with you the screenshot also, right? Yes, sir. Okay, so Uh, multiple times the same student was messaging me like multiple days that sir, for this subject I think I don't remember the subject name. I think maybe TOC or some subject. That sir, DS, DS था शायद, हाँ, DSA. Okay, sir, for DSA हाँ. subject, rich notes are not available. Please provide them. So your notes are, I can say, in just very short duration. Students are loving your notes. So can you please let us know about your notes making? How much time it was taking? When were you writing the notes? Like when you are watching the lecture, then are you writing the notes, or are you writing the notes after completing the lecture from the annotated notes? So basically, related to notes making, what was your strategy? How were you balancing, notes making and watching the lectures, everything? Okay. So I prepared my notes on my own way, and for each subject I write my own notes. So how I write? Okay, let's discuss about it. So whenever I start watching lectures, then I watch more lectures in mostly in mobiles. Then during watching lectures, I also make the notes. Like for example, if we take any numerical subjects like in which we have to do some numerical like computer network. So whenever sir
whenever any new question come in the screen, then I don't wait for sir's answer or what sir will proceed. Then I just write my answer as the tag of my answer. If you notice in my notes, then I very many things I write my answer, and then I write something on my behalf. If I get wrong, then I just do whatever, like this is not correct answer. Then I write sir's answer. So it will help when you revise your subjects, then you could recall that what you mistake you done previously, and then why his answer is wrong and why sir's answer is correct. तो इस तरह से मैंने मतलब मेरा आंसर और सर का आंसर वो मतलब बैलेंस किया था नोट्स की मेकिंग के दौरान। और दूसरा पार्ट की मैं अपनी नोट्स लेक्चर लेक्चर वाइज बनाता था। ऐसे नहीं कि टॉपिक वाइज। अगर अ, ऐसे एग्जांपल ले ले कि डिवाइड एंड कंकर का टॉपिक चल रहा है, तो मैं डिवाइड एंड कंकर के टॉपिक के अंदर सब नोट्स नहीं बनाता। अगर लेक्चर 21 है तो लेक्चर 21 के सभी नोट्स, फिर नया टाइटल आएगा लेक्चर 22। तो उस उसके वजह से क्या हेल्प होती थी कि whenever I revise my notes and I forgot anything, then I quickly recall कि वो कौन से लेक्चर्स में था। और मतलब वो लेक्चर्स ढूंढना मेरे लिए काफी आसान होता था, क्योंकि वो जो नोट्स थे उसके ऊपर ही लिखा होता था कि ये कौन से लेक्चर्स में मैंने क्या लिखा है। तो वो एक मुझे काफी हेल्प किया ड्यूरिंग माई रिवीजन फेज एंड लास्ट के 2-3 मंथ में। सो एक पूरी की पूरी जर्नी है नोट्स मेकिंग की। एंड मोस्टली तो मैंने लाइक सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट्स के अलावा सभी के नोट्स बने थे, क्योंकि एक वो सब्जेक्ट मैंने लास्ट में किए थे तो उस वक्त इतना टाइम नहीं था, तो फिर मैंने अनोटेटेड नोट्स का सहारा लिया था। और मोस्टली तो मैंने सारे के सारे नोट्स मैंने खुद से ही बनाए थे। तो मैं अभी तो मैंने कंपाइलर के, ईएम के, एल्गोरिथम के और ओएस के नोट्स अपलोड किए हैं गो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। बट अभी मेरी मतलब नोट्स की स्कैनिंग का प्रोसेस चालू हुई है, तो फिर मतलब फर्दर आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। Okay. So basically, almost for all the subjects, you will get rich handwritten notes that he has made from the Go classes lectures. Okay. So Rich, अभी आपने कौन से सब्जेक्ट्स के नोट्स आपने नहीं बनाए, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स के आपके नोट्स हैं जो स्टूडेंट्स को एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए? अच्छा, एक सीओए के और डेटा स्ट्रक्चर्स के। इन दो क्योंकि सब्जेक्ट के आपने नहीं बनाए? हाँ, डेटा स्ट्रक्चर में मैंने मेरे नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन महक के नोट्स मैंने फॉलो किए थे, ऑल इंडिया रैंक 75। क्योंकि उसने भी काफी अच्छे नोट्स बनाए हैं। तो मतलब डीएसए में मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो फिर मैंने उसके नोट्स ही कॉपी कर लिए थे। एंड सीओए मैंने बहुत ही पहले देखा था, लाइक जब मैं थर्ड या फोर्थ सेम में था, जब मेरे सेमेस्टर में आए थे, तो मेरे स्कूल की मतलब कॉलेज की नोट्स थी। तो फिर मैंने गो क्लासेस के लेक्चर्स के दौरान मैंने नोट्स नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने गो क्लासेस में से लास्ट में देखा था, लाइक नवंबर और दिसंबर में। तो उस वक्त टाइम नहीं था नोट्स बनाने का। तो ये दो सब्जेक्ट्स के नहीं है। अगर ओके। डेटा स्ट्रक्चर्स में महक के नोट्स चाहिए तो वो मैं स्कैन करके मतलब कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप महक से लेके और आप प्रोवाइड कर देना, या फिर मैं महक को एक बार मैसेज कर दूंगा। और महक के भी शॉर्ट नोट्स जो हैं वो शायद हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, हाँ। अपलोड कर दिए हैं। ओके। तो रिच, आप जब नोट्स खुद के बनाते खुद के नोट्स जब आप बनाते हो या बनाते थे, तो उसमें टाइम नहीं लगता कि यू आर वॉचिंग, लेट्स सपोज देयर इज अ 2 hour लेक्चर नाउ, to complete that lecture with notes making, you are pausing the lecture, solving the question yourself. If you are doing it wrong, then you are just, okay, you are making across that, okay, this is wrong answer, now then you are playing the video and you are writing the correct answer. Okay, so overall, in this overall process, total how much time it was taking for a 2 hour lecture? यस सर, इट्स टाइम टेकिंग तो था, लाइक मतलब नोट्स बनाने विथ लेक्चर्स तो थोड़ा टाइम तो लगता था। लेकिन मैं क्या था कि मतलब लेक्चर्स में मोस्टली 1.5x या 2x में ही देखता था। लाइक अगर आपका लेक्चर हो तो मैं 2x में देखता था, और सचिन सर के तो 1.75 या तब उसके अराउंड। तो मतलब आधा टाइम तो लेक्चर देखने का वहां से रिड्यूस हो जाता था, लेकिन उसके आधा टाइम में नोट बनाने। तो मतलब अगर 2 ओवर का लेक्चर है तो मोर और लेस 2 ओवर का ही टाइम लगता था, दोनों मिला के लेक्चर्स देखने के और नोट्स बनाने के टोटल। ओके ओके। और आपने बोला कि आपने मोस्टली जो लेक्चर्स देखे हैं वो आपने मोबाइल पे देखे हैं, आप लैपटॉप पे देखना प्रीफर नहीं करते थे, या फिर आपके पास लैपटॉप उस टाइम होता नहीं था जिस टाइम आप लेक्चर देखते थे?
मतलब लैपटॉप था, लेकिन प्रीफर मैं इसलिए नहीं करता था क्योंकि मतलब वो इजी टू कैरी नहीं था लैपटॉप। अगर मैं मतलब कॉलेज में जाऊँ या लाइब्रेरी में हूँ तो मतलब ऐसे ही मोबाइल निकाल के लेक्चर देखने बैठ जाता था। तो मतलब उस हिसाब से मेरे मतलब आदत ही पड़ गई थी मोबाइल की। और आदत तो मेरी लॉकडाउन से थी। मतलब लॉकडाउन, हमारा 11th 12th भी लॉकडाउन में ही था, तो वहां पे भी ऑनलाइन ही था सब कुछ। तो उस वक्त मैंने सब कुछ मोबाइल से ही पढ़ा था। तो मतलब उस टाइम से ही मतलब वो हैबिट रही थी कि मोबाइल से ही पढ़ने का। Okay, 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 Rich. So, Rich, in the तो chat, students are asking the हाँ, doubts. You can हाँ, one by one you can read the doubt and then you can resolve it. ओके। सो मीना का डाउट है, हाउ डिड यू रिवाइज प्रीवियसली completed सब्जेक्ट्स? I am experiencing that the strategy that everyone suggests कि one day out of the week should be for revision. It sounds executable on paper, but it is very hard to break the flow of current subjects and give. Okay, okay. So like you ask very good doubt. That's like excellent doubt. तो मैंने मेरे थर्ड ईयर में यही मिस्टेक की थी कि मैंने रिवीजन नहीं किया था। इसीलिए मेरा थर्ड ईयर में इतना अच्छा रैंक नहीं आ पाया। देन फोर्थ ईयर में मैंने वो इम्प्रूव किया। लेकिन फोर्थ ईयर में मैंने मतलब सिर्फ मेरे 3 या 4 सब्जेक्ट ही बाकी थे, तो मैंने पहले ऐसा सोचा कि पहले सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ सब कुछ, फिर मैं एक साथ ही रिवीजन फेज शुरू करूंगा। तो फॉर मी, आई स्टार्टेड रिवीजन इन सितंबर मंथ। देन व्हाट आई डू इन रिवीजन फेज, फर्स्ट आई पिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, I revise it completely from my notes. Then I do all the PYQs from that subject. Then I move to test series and then mock test and then pick up new subjects. तो ये पॉसिबल मेरे लिए इसलिए था क्योंकि मेरे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट थे। अगर आपके सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है और आप रिवीजन मतलब शुरू में ही करना चाहते हो, तो मतलब एक तो वे है कि अगर आप एक वीक में एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड करो पूरा का पूरा पुराना रिवीजन करने के लिए। और एक दूसरा और बेनिफिशियल वे ये है कि ड्यूरिंग योर फर्स्ट रिवीजन फेज मेक शॉर्ट नोट्स, बिकॉज रिवाइज फ्रॉम शॉर्ट नोट्स विल हेल्प यू very much, because you can't revise your whole notes in your every revision phase. You have to do some less work and more, like more knowledge, so you have to make short notes. तो एडवाइस तो यही है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ और शॉर्ट नोट्स को धीरे धीरे इंप्रूव करते जाओ। शॉर्ट नोट्स अपनी इस लेवल पे बनाओ कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका 11-15 पेजेस में आ जाए। तो वो आपको हेल्प करेगा लास्ट के 2 मंथ में, या मतलब फ्रॉम जस्ट प्रीवियस डे ऑफ योर एग्जाम। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का रखो। जो रिच बेसिकली ये जो डाउट है, मीना का जो डाउट है, सो वो ये है कि सब्जेक्ट चल रहा है, मैंने वो कंप्लीट कर लिया, अब मेरा नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है। अब मैं प्रीवियस सब्जेक्ट का जो रिवीजन है वो क्या मुझे हफ्ते में एक दिन डेडिकेट करना चाहिए? कि उससे ये बोल रहे हैं कि इनका फ्लो टूट रहा है, ठीक है, जो करंट सब्जेक्ट का फ्लो है वो अंडरस्टैंड। उस दिन टूट रहा है। तो इसलिए इनको वो स्ट्रेटेजी सही नहीं लग रही। तो उस सिचुएशन में फिर अब जो करंट सब्जेक्ट मेरा चल रहा है तो मैं प्रीवियस सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करूं? एनी लाइक इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट और मे बी इन योर सेकंड अटेम्प्ट, हाउ वर यू डूइंग? यस सर, यस सर। मैंने 2 सब्जेक्ट में ऐसा किया था कि ड्यूरिंग आई वॉच लेक्चर्स एंड आई ऑल्सो रिवाइज प्रीवियस सब्जेक्ट्स। तो इन दैट केस व्हाट कैन यू डू कि अगर हफ्ते में एक दिन नहीं तो रोज थोड़ा थोड़ा करो। मतलब क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा एक ही 1-2 दिन ब्रेक कर दोगे अपने करंट सब्जेक्ट से तो फिर फ्लो टूटेगा, वो पक्का है। तो आप अपना फ्लो मत तोड़ने दो। हर हर दिन आधा घंटा 1 घंटा सिर्फ डेडिकेटेड करो अपने पुराने सब्जेक्ट के लिए। और अगर उसमें भी अगर आपको वो मतलब फ्लो टूट रहा है तो ट्राई करो आप उसके क्वेश्चन सोल्व करो प्रीवियस सब्जेक्ट। क्योंकि व्हेन यू सोल्व क्वेश्चंस यू डोंट फील कि मतलब फ्लो टूट रहा है या मतलब कुछ मेरा इफेक्टिव काम नहीं हो रहा है, क्योंकि आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं, मैंने कुछ तो आज के दिन पुराने सब्जेक्ट्स का किया है। And when you solve question, you also revise that particular topic. If you don't get questions, like if you don't get answer, then you revise it from your notes. तो इस तरह से रिवीजन भी हो सकता है कि क्वेश्चन सोल्व करते जाओ और वो टॉपिक रिवाइज करते जाओ। तो ये भी एक अच्छा वे है, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने में आपको इतना मतलब वो नहीं लगेगा कि लाइक
क्या बोलते हैं, मतलब मैं बोर हो रहा हूँ या रिवीजन में इतना मजा नहीं रहा है, क्योंकि रिवीजन फेज इज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग फेज। सो वो अवॉइड करना मतलब है। तो दो तीन सजेशन में अगर देना चाहूँ कि मोर और लेस, तो ट्राई करो कि रोज एक एक घंटा या थोड़ा थोड़ा टाइम देके रिवाइज करो। दूसरा ये है कि आप क्वेश्चंस के बिहाफ पे रिवीजन करो, या फिर हफ्ते में एक दिन दो। हफ्ते में जो एक दिन वाला है वो आई आई डोंट थिंक कि वो हेल्प करेगा या नहीं भी करेगा। अगर आपका फ्लो टूट रहा है तो आप वो मत करो। आप हर रोज एक एक घंटा वाला मतलब कर सकते हो, या फिर क्वेश्चंस वाला भी पैटर्न बढ़िया है। Yeah, actually, the same suggestion I will also give Mina, that every day you just you just fix 1 hour for revision of previous subject. Whether you revise the notes or you solve the questions like Rich is saying, okay, for the previous subject you are solving some questions, because daily if you are solving some questions, maybe 5 10 subjects, 5 10 questions, or maybe 5 10 pyqs of the previous subject, then you will not feel that you are forgetting the previous subject. Okay, so Yes. that's the whole point of revision, that you should not feel that you have forgotten everything that you have studied previously. Okay, so you should fix 1 hour every day, maybe at the end of the day. Okay, I think, or maybe in the beginning of the day. Okay, see, our focus to learn new things, new concepts, that is minimum at the beginning, also at the end. Okay, so I think, Rich, when we start our day, okay, we have woke up, and now when we are starting our day, at that time initially we are very slow, our mind is very slow to catch up new things. Okay, Yes. so this is what I feel. And then maybe in the initial 1 hour, maybe you can just do the revision. Okay, revise the previous notes of previous subject, or maybe solve some 5 10 pyqs Exactly. of the previous subject, so that you can do only for 1 hour. Then once your mind is in the, I can say, high active zone, then you can continue with your current subject. Okay, and at the end of the day, maybe half an hour again you can give, but to the revision of the same day. Okay, that is what I suggest, that at the end of the day, when you are ending your day and when you are going to sleep, then maybe for 15 minutes, just 15 minutes, 20 minutes, or 30 minutes, you recall what you studied in the whole day, what you did in the whole day. Okay, that you recall in your mind, that okay, these were the concepts, these were the, yeah, these were the definitions, yeah, I understood. Okay, this test I attempted, yeah, I made these many mistakes, but now all the wrong questions I've revised. Okay, now everything is fine. So basically something like that. Okay, every day, at the end, before going to sleep, just for 15 20 minutes, you recall your whole day. Okay, I think that will be very helpful, because if on a particular day you did not give your best, then at that time you will feel कि यार आज तो कुछ किया ही नहीं. Okay, I did not do anything today. Then maybe next day you will put more efforts. Okay, overall, I think this is what you can do, and I think this is what almost all the students can do. Okay, Yes, sir, exactly. एंड so आई uh, ऑल्सो वांट टू ऐड वन थिंग अबाउट रिवीजन। ये देखो, गेट इतना हार्ड एग्जाम नहीं है, बट उसको हार्ड बनाता कौन? कौन सी ऐसी पॉइंट है कि वो गेट एग्जाम को हार्ड बनाता? वो ये है कि आपके पास 13 सब्जेक्ट्स है। अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे आपको पूरा का पूरा समझ आएगा। आपको मतलब बढ़िया से एक सब्जेक्ट पूरा समझ आएगा। फिर आप दूसरा पढ़ोगे, दूसरा भी आ गया। तीसरा पढ़ोगे, तीसरा भी आ गया। लेकिन when when you put all your subject on the same platform, at the same time, then things will get harder। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट है कि सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना, वही एक हार्डनेस है गेट के एग्जाम के। वरना आप इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट के देखो तो वो इतना हार्ड नहीं है। मतलब जो कॉलेज में पढ़ते हो उससे लाइक थोड़ा मतलब एक दो स्टेप अगर अप करो, आप अपने आप को अपस्किल करो, तो वो गेट लेवल का हो जाएगा। लेकिन हार्डर चीज ये है कि आप सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलो, और वो हो पाएगा ओनली ऑन बिकॉज ऑफ रिविजन। so you have to put your more effort in your revision phase। so yeah, that's yes. the like importance of your revision phase। Yes. so So because remember, GATE has more than 10 subjects. So revision is really very important. Please don't take it for granted that okay, I have studied this subject, I have understood the concepts, I have solved the PYQs. Now I will never forget it.
It's not possible that you will not forget it. Even if it is your favorite subject, it is your expert subject, like you are expert in that subject, then also after maybe 2 months, 3 months, you will feel that, you know, you don't have those concepts in mind, or maybe not with that intensity. Okay, maybe Yes. some questions you can still solve, but not with that intensity. Okay, like when you were studying that subject for the first time. Okay, so that intensity will be gone. If you want to preserve that intensity, then this regular revision is really very important. Okay, and one more thing I want to tell all the students very sincerely, that if you don't do revision, and let's assume you are completing your syllabus by September end or maybe by October end, but with regular revision, if you are completing your syllabus by November end also, then it is worth it. This is what I'm saying, that remember, some students are very very obsessed with, completing syllabus early. Their whole focus is on completing syllabus early. They don't care about revision. They don't care about gate pyqs, weekly quizzes, practice. They don't care about understanding the concepts. They just want to cover the syllabus very early. Okay, so I am just telling you from my experience of the last almost 10 years, that this is the biggest mistake every year students do, and majority of the students do this mistake. Okay, so I am just saying that with good understanding of concepts, with regular revision, and with practice, pyqs, topic wise test, weekly quiz, with all these things, if you are completing your syllabus maybe 1 month later than what you were expecting. Okay, maybe you are taking 1 more month, or maybe you are taking 2 more month, then also it is worth it. Because when you will be completing your syllabus, at that time all the subjects will be in your mind, because you have done regular revision. Okay, all the pyqs you would have solved. Okay, many topic wise test and weekly quizzes you would have attempted. You will be at a very separate level of confidence, I can say, on a very top level of confidence you will be there. So it is worth it. I'm just saying this point. So, Rich, I just want to ask you one thing, that were you also thinking, that let's complete the syllabus early? Like, what was your mindset? I'm just asking the mindset Yes. during your preparation. What was your mindset? Yes, sir. That's my biggest mistake in my third year attempt because I am too obsessed with to completing syllabus. Like मैं सिर्फ लेक्चर्स देखे जा रहा था, नोट्स बनाते जा रहा था. लाइक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मतलब पीछे कौन से सब्जेक्ट मैंने किए हैं, याद है कि भी नहीं किया है. नथिंग लाइक आई जस्ट वॉचिंग लेक्चर्स, मेकिंग नोट्स एंड मूव फर्दर. तो वो मेरी सबसे मतलब बड़ी मिस्टेक मैं मानूंगा मेरी थर्ड ईयर में यही थी. फिर मैंने उसको इम्प्रूव किया फोर्थ ईयर में बाय डूइंग रिवीजन एंड रेगुलरली सॉल्विंग पीवाईक्यूज एंड देन आफ्टर देन मूविंग फॉर टेस्ट सीरीज. तो वो एक मेरे लिए एक इम्प्रूवमेंट था फ्रॉम थर्ड ईयर टू फोर्थ ईयर. So yeah, like Abhivi, like many aspirant are like too much obsessed to completing syllabus. But I genuinely say that is the very biggest mistake. Like you don't rush towards completing syllabus. Like just like आपका प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि मैंने जितना भी अब तक किया वो मुझे आज पता होना चाहिए. अगर मैंने पिछले 6 महीने में ये किया तो मुझे आज पूरा का पूरा 6 महीने का पता होना चाहिए. तो उस हिसाब से अगर आप दिसंबर या मिड दिसंबर में भी अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे तो भी वो मतलब वर्थ इट है. फिर आपके पास इनफ टाइम है कि आप टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, AIMTs एंड ऑल आप वो सब मैनेज कर पाओगे. So, Rich, there is next doubt. A ओके. student is asking, hey, Rich, first, congratulations on your rank. What is the total amount of time that you dedicated for syllabus completion, and how much time did you study each day? ओके. So first of all, thank you for your wishes. For amount of time I dedicated for completing syllabus, I think for me it's quite high because like I am like I studied, I started preparation from third year, so I am little bit relaxed to completing subject. Like मैं इतना एक दिन में इतने efforts नहीं लगा रहा था during my third year, so I am little bit relaxed at that time. So for that reason, for me, it taking I think 11 to 12 months to complete my syllabus. But I genuinely feel that if I like little bit serious in my third year, then I could uh, complete my syllabus in within 8 to 9 months. So for me, it's 11 to 12 months.
And in each day, like when GATE exam is comes on near, at that time I studied almost 8 to 9 hour per day. एंड वो 9 आवर में से मतलब 3 आवर तो एक मतलब टेस्ट के ही होते थे, मॉक टेस्ट के लास्ट के एक मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। तो मतलब वो जो स्टडी है वो तो 6 घंटे की ही होती थी लास्ट के एक मंथ में। और उसके पहले ड्यूरिंग कॉलेज आई एबल टू पुट 5 to 6 आवर इन माई स्टडी, इंक्लूडिंग वॉचिंग लेक्चर्स एंड रिविजन एंड पीवाईक्यूज, लाइक गेट रिलेटेड जितना भी था वो मतलब मैं 6 आवर तक का टाइम दे पाता था ड्यूरिंग माई कॉलेज। एंड देन लास्ट के 8 सेम में हमारे मतलब कॉलेज नहीं था, तो मतलब सिर्फ इंटर्नशिप थी। तो उस वक्त मैं एट एट 7 to 8 आवर्स में निकल पाता था दिन में। So just for context, I am telling the students that Rich prepared with college this year. With final year of college, he secured All India Rank 67 in GATE CS. But with third year, he secured almost 4,000 rank in GATE CS and almost 6,000 rank in GATE DA with third year. Then after 1 year with final year, you can see the rank that in GATE CS 67 rank and in GATE DA 311 rank. Okay. Overall, Rich is basically saying that because I was preparing with third year and final year, so he had, I can say, more time. So if he was kind of relaxed, okay. यस सर। And but the point is, he's also saying that if he he had put more efforts maybe per day, then at least I can say maybe 2 months, 3 months he could have saved. Okay, this is what he's basically saying. Okay, so if any one of you is has started the preparation and want to know that okay, in how many months I can complete my syllabus with revision, with PYQs, okay, overall, if I put my good efforts every day, maybe consistently, if I put, let's assume, 5 to 8 hours of effort consistently, if I put, then the answer to that question will be around 8 to 9 months. See, for GATE CS preparation, almost 8 to 9 months. If you put your best efforts consistently every day, then 8 to 9 months will be, I can say, this is a figure that most of the people will tell you that you can complete the syllabus of GATE CS with PYQs with revision. Okay. यस। But of course, it depends on the student. Maybe some students can do it, in 6 months, 5 months. There are many such students, but there are some students who will take maybe 12 months, 14 months. Okay, but this is just an average figure I'm telling you if you want to know. Okay, some students they want to know, so I'm just telling you this average figure that if you put your best efforts every day consistently, then GATE CS needs almost 8 months or maybe 9 months, and GATE DA needs almost 4 months, 5 months. Okay, GATE DA syllabus is less and it needs around 5 months. You can complete the syllabus with revision, with PYQs, everything in a very nice way. Okay, so ओके। Rich, now one हाँ। student has raised the hand, right? So I'm just हाँ। like, so that you can also from the next session onwards, these type of things you can handle. So I'm making you the host, and what you can do, you can like ask to unmute, and हाँ। हाँ। then you can resolve the doubts. So I've made you the host. ओके। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग Yes. आर्यन। सर मैंने फरवरी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। आई हैव कंप्लीटेड 4 सब्जेक्ट्स: डेटा स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग, डिजिटल एंड लीनियर अलजेब्रा। अभी मैं टीओसी, डीएम और ओएस कर रहा हूँ एक साथ। ओएस लाइव चल रहा है, उसमें कर रहा हूँ, एंड टीओसी एंड डीएम आई एम डूइंग। सर डीएम में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, लाइक प्रोपोजिशनल लॉजिक है, वो थोड़ा इजी सब्जेक्ट है। लाइक आफ्टर दैट जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। एक बार में जो मैंने वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी देख लिए हैं। उसके बाद जो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेक्चर्स के थ्रू थे वो भी मैंने किए हैं। बट अभी भी कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो एक बार में समझ में नहीं आ पा रहे हैं। तो सर आपकी क्या अप्रोच थी कि उस पे अभी रहें या फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करें? और लाइक
एक ऐसे सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना चाहिए, लाइक जैसे डीएम है, या फिर उनमें कितना टाइम दे कि सिलेबस भी बहुत हमारा डिले ना हो और बहुत ज़्यादा तेज ना भागे, ताकि सिलेबस भी समझ भी आ सके। आर्यन, आप डीएम का मेन कोर्स फॉलो कर रहे हैं या कॉम्पैक्ट कोर्स? सर कॉम्पैक्ट कोर्स। कॉम्पैक्ट कोर्स में जैसे आपने एक चीज बोली कि आपने बोला फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, लेकिन एक्चुअली कॉम्पैक्ट कोर्स में तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के सिर्फ 2 ही लेक्चर हैं, राइट? उन मतलब 2 लेक्चर में पूरा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक कंप्लीट हो गया था। यस सर, उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो प्लेलिस्ट उसके बाद प्रोवाइड हुई है, उसमें पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और आपने 2026 का एक एनालिसिस वीडियो भी बनाया था, एग्जाम एनालिसिस। और 2026 के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे वो भी मैंने लेक्चर्स के थ्रू किए हैं। बट कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे जिसमें उसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्री का यूज़ था कुछ क्वेश्चंस में, तो और कुछ ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस भी थे, वो इतनी इजीली समझ में नहीं आ पा रहे। तो मैं अगर उसमें और टाइम दूं या फिर सेट के लिए मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरा क्वेश्चन ये था सर। आर्यन, एक चीज तो ये कि जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ये सारी चीजें आपने डिस्कस करी, ये सेट थ्योरी के अंदर रिलेशंस के अंदर आएगा। आप यस अभी आप अभी फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पे बैठे बैठे इस तरह के क्वेश्चंस को स्किप करो। प्लीज यस सर। अंडरस्टैंड माय पॉइंट दैट ये जो डिस्क्रीट मैथ्स है उसके अंदर एक सेट थ्योरी है, उस सेट थ्योरी के अंदर फंक्शंस, रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे एरियाज का एक तरीके से मर्ज होता है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक भी लगेगा, ग्राफ थ्योरी भी लग रहा है, उसके अंदर हो सकता है रिलेशन भी लग रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को तब सोल्व करो जब आप ये सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़ चुके हो। ओके। आप यस। अभी के लिए जब आप फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पढ़ रहे हो और आपको पता है कि यार फ्यूचर में जब रिलेशन आएगा तब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर लूंगा, तो इसलिए अभी उस क्वेश्चन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है? कोई क्वेश्चन है जिसमें मान लो ग्राफ थ्योरी यूज हो रही है, तो ग्राफ थ्योरी जब आप पढ़ोगे, फ्यूचर में जब ग्राफ थ्योरी आप पढ़ोगे, ठीक है, और यस। उसके बाद में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अभी उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी सारे क्वेश्चन पहली बार में किसी टॉपिक के सारे गेट पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं है। वो करो जो आपने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, मतलब वो पीवाईक्यू जो आपके अभी तक कवर हो चुके हैं कॉन्सेप्ट वाइज, वो कर लो। और जो बाकी पीवाईक्यू हैं जिनके लिए और भी किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत हो, तो फिर वो एट अ लेटर पॉइंट कर लेना। ठीक है? तो आप जैसे एक चीज तो आपने बोली रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वाली, तो वो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है? यस सर। सेकंड चीज, एंड हाँ, एक रिच, एक और लाइन बोलना चाहता हूँ हाँ मैं। हाँ हाँ। हाँ, सेकंड चीज आर्यन की, जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के कॉम्पैक्ट कोर्स के अंदर कॉन्सेप्ट वाइज 2 ही लेक्चर हैं, बाकी सारे यस सर। प्रैक्टिस लेक्चर्स हैं। प्रैक्टिस लेक्चर्स तो कितने भी हो सकते हैं। अचानक से मुझे मान लो 10 अच्छे क्वेश्चन मिल गए, मैंने उनका प्रैक्टिस लेक्चर बना दिया। प्रैक्टिस लेक्चर्स की कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात, प्रैक्टिस तो कभी खत्म होगी भी नहीं, कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाते हैं कि यार ये कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने पढ़ लिए, अब इनके ऊपर चाहे कितने क्वेश्चन बनाते रहो, कितनी प्रैक्टिस करवाते रहो। ठीक है? तो इसलिए प्रैक्टिस जो लेक्चर्स हैं उनको आप ऐसे टोटल कंटेंट के अंदर ऐसे मत सोचो कि यार टोटल कंटेंट है, ये इतना बड़ा टोटल कंटेंट है। आप टोटल कंटेंट देखो कि 2 लेक्चर हैं कॉन्सेप्ट वाइज, बाकी सारे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। उनका पर्पज है कि आप पोज करो, खुद ट्राई करो, पोज करो, खुद ट्राई करो। आपको वीडियो मूवी की तरह नहीं देखना है कि जैसे किसी लेक्चर के अंदर मान लो मैंने 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करवाए, तो उनको ऐसा नहीं है कि ऐसे बैठ के आप देख रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, तब आपको वो भारी लगने लगेगा वो वीडियो। ठीक यस है? सर। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन सामने आया, पॉज किया, खुद से ट्राई किया, टाइम लगेगा लेकिन खुद से ट्राई किया, कुछ क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। जो सोल्व नहीं होंगे उनका सॉल्यूशन देख लो, जो सोल्व हो गए उनको जल्दी निकाल दो, जल्दी निकाल दो, या फिर 2.5 की स्पीड में निकाल दो, 2x की स्पीड में निकाल दो, थोड़ा आगे 10-10 सेकंड आगे करके निकाल दो। बात ऐसी है कि प्रैक्टिस जो सेशंस हैं उनको सोल्व करने का तरीका अलग है, और कॉन्सेप्ट वाइज जो लेक्चर्स हैं जिनके अंदर कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हैं उनको देखने का तरीका अलग है। ठीक है? तो प्रैक्टिस वाले लेक्चर्स के लिए आप प्लीज वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो। ठीक है? हाँ, यस रिच। ओके। तो आर्यन का एक और डाउट था कि लाइक एक सब्जेक्ट को मैक्सिमम कितना टाइम देना चाहिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। So if I borrow, let's say, just one, like whatever the subject, if subject is too big, then give like 1 month or plus 10 to 20 days. Then if subject is less, then give 20 days. So if you feel that
you are stuck on DM subjects and you can't move further without completing them, then just see DM as a 5 subjects. Like first order logic or propositional logic is one subject, then set theory is another subject, graph theory is another subject, combinatory is another subject. So take DM as in that manner. So you will feel confident on DM. Like मेरे लिए भी like सबसे जो hard मतलब जो हेवी सब्जेक्ट था वो डीएम था, क्योंकि लाइक सो मेनी कॉन्सेप्ट्स आर देयर एंड वी हैव टू टेक ऑल कॉन्सेप्ट्स लाइक टुगेदर। तो मैं डीएम को एक सब्जेक्ट नहीं देखता था, 5 सब्जेक्ट देखता था कि मैंने डीएम 1.1 कर लिया, मतलब पूरा का पूरा प्रोपोजिशन लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक कर लिया। फिर मैंने एक मंथ के लिए कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लिया, फिर अगर मतलब फिर वापस मन किया तो फिर डीएम का ग्राफ थियरी देख लिया, फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट लिया। तो इस तरह से डीएम को डिवाइड करके मूव करो तो फिर आप एक सब्जेक्ट पे मतलब रुके भी नहीं रहोगे और आपका दूसरे सब्जेक्ट्स भी होते रहेंगे। एंड व्हेन यू कंप्लीटिंग एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स देन यू फील कॉन्फिडेंट कि लाइक अगर चलो ये एक सब्जेक्ट हो गया, अब मैं दूसरा सब्जेक्ट करता हूँ। तो वो मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंट करने के लिए ढूंढते रहो कि आप किससे कॉन्फिडेंट होते हो। अगर आपको ये लगे कि मैं सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो आप उस तरह के सब्जेक्ट्स को पहले चूज करो कि जो मतलब लेंथ में छोटे हो, तो फिर वो मतलब जल्दी खत्म हो जाए, तो फिर ऐसे करके मूव करो। और डीएम को अगर आप एक सब्जेक्ट के बदले 5 में कन्वर्ट करोगे, तो फिर वो मतलब वो एक मतलब अगर 5 में कन्वर्ट करने के बाद तो जो प्रपोजिशन लॉजिक है और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है तो वो तो मतलब छोटा सा सब्जेक्ट बन गया। तो फिर वो मूव मूव करने को लिए इजी रहेगा वो सब्जेक्ट को। तो लाइक आप डीएम को ऐसे भी टैकल करते हो। सेम फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, लाइक यू कैन सी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एज अ 3 सब्जेक्ट्स, यस कैलकुलस, देन प्रोबेबिलिटी एंड ऑल्सो लीनियर अलजेब्रा। तो मतलब ऐसे करके भी आप सब्जेक्ट्स को टैकल कर सकते हो। Yes, ओके this is really good idea. This is really good idea to all the students. कि engineering mathematics, think of engineering mathematics as 3 subjects: linear algebra, probability, calculus. They have nothing to do with each other. To be honest, यस like they are completely disjoint. Linear algebra, probability, calculus, you can study in any order, in any sequence. You can study. They are एग्जैक्टली। completely disjoint. So engineering mathematics is 3 subjects. And discrete mathematics is really 5 subjects, to be honest. In MTech, अभी रिच आप जब MTech करने जाओगे IISc बेंगलोर नहीं, आपको IIT मद्रास मिला है, तो रिच हैज टेकन IIT मद्रास, सो ही इज गोइंग टू जॉइन IIT मद्रास दिस ईयर। तो रिच आप वहां पे देखना कि बीटेक के कोर्सेज में या फिर वहां पे आप देखना, ग्राफ थ्योरी अपने आप में एक पूरा कोर्स है, हाँ कॉम्बिनेटोरिक्स अपने आप में पूरा कोर्स है, और इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स, इनके अलग अलग प्रोफेसर्स भी हैं, कि ग्राफ थ्योरी का एक प्रोफेसर, कॉम्बिनेटोरिक्स का एक प्रोफेसर, ठीक है। सेट थ्योरी का तो नहीं होता है, लेकिन हाँ ग्रुप थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक यस प्रोफेसर, ठीक है। तो सेट थ्योरी और प्रोपोजिशनल लॉजिक इनका तो एक नहीं होता है अलग से कोर्स, ठीक है। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, ग्राफ थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, इनके ये अपने आप में अलग अलग 3 डिपार्टमेंट, नोट डिपार्टमेंट्स, 3 अलग अलग ये लैब्स होती हैं, 3 अलग अलग इनकी प्रोफेसर्स होते हैं, 3 अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो डिस्क्रीट मैथ्स में तो इन्होंने क्या किया है कि 5 सब्जेक्ट को एक तरीके से एक सब्जेक्ट में रख दिया। तो इफ यू थिंक ऑफ इट लाइक दैट दीज आर 5 सब्जेक्ट्स, देन यू विल फील कॉन्फिडेंस व्हेन यू कंप्लीट वन। ओके, आप जैसे प्रोपोजिशन लॉजिक या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है उसको जैसे कंप्लीट करोगे, टोटल कितने लेक्चर हैं कॉम्प्लीट कोर्स में? प्रोपोजिशन लॉजिक के 3 लेक्चर हैं या 2 लेक्चर हैं, यस आई सर। थिंक। यस सर, और टू समरी पार्ट्स। है ना, 2 हैं क्या? यस सर। तो प्रोपोजिशन लॉजिक के 2 हैं और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के 2 या 3 हैं, यस राइट। सर। यस सर। तो आपका ये एक, अगर आप ऐसे मान के चलोगे यार फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक और प्रोपोजिशन लॉजिक ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, एक या दो दिन में खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर। फिर जो प्रैक्टिस लेक्चर है वो तो देखो, आपको वीडियो पॉज करना ट्राई करना, पॉज करना ट्राई करना है, वो चीज तो आप अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ पैरेलल में भी कर सकते हो। जो बोला ना कि हर दिन आप 1 घंटा रिवीजन के लिए दो या प्रैक्टिस के लिए दो प्रीवियस सब्जेक्ट का, तो आप उस टाइम भी कर सकते हो। नया सब्जेक्ट शुरू कर दो, नया टॉपिक शुरू कर दो, और उसके साथ हर दिन 1 घंटा आप पुराने सब्जेक्ट का या पुराने टॉपिक का प्रैक्टिस कर लो। तो ओवरऑल आई थिंक दिस इज रियली गुड आइडिया रिच, कि डिस्क्रीट मैथ्स को यू कैन थिंक ऑफ एज लाइक 5 सब्जेक्ट्स, एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को यू कैन थिंक लाइक दैट दिस इज 3 सब्जेक्ट्स।
Yes. So, Yes, Aryan, sir. is there any other doubt? No, sir, So no. Okay, Thank you, so sir. Aryan, यू आर Yes, sir. गोइंग वेरी गुड। ओके, एंड कॉम्पेट कोर्स के आपको डिस्क्रीट मैथ जो है वो कॉम्पेट कोर्स के अंदर आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और Yes, sir. आप जो प्रैक्टिस लेक्चर्स हैं उनको आप ऐसे टोटल कंटेंट के अंदर काउंट अगर करोगे तो बर्डन आएगा। तब आपको लगेगा कि अरे यार इतना, मतलब दिमाग पहले से ही प्रेशर में आ जाएगा। Yes, लेकिन sir. अगर Sir, आप सिर्फ ये propositional सोचोगे, logic took, sir, 1 week complete, like, because I included those practice lectures also at that time only. That was a problem. यस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि आप सिर्फ कॉन्सेप्चुअल जो लेक्चर है जहां पे कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हैं आप सिर्फ वो उसकी वो करो कि हाँ यार ये है 4 लेक्चर हैं, ओके इनको मैं 2 दिन में खत्म कर लेता हूँ। बाकी जो लेक्चर है उनमें तो मैं हर दिन का एक एक भी कर लूंगा तो चल जाएगा। ठीक है, मतलब Yes. मैं नए सब्जेक्ट पे चला जाता हूँ या नए टॉपिक पे चला जाता हूँ, और उसके साथ साथ दिन में अगर मैं एक भी अगर इसका करूंगा तो इससे मेरा रिवीजन भी होता रहेगा, प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, तो Yes, sir. इस तरह से आप सोचो वो ज्यादा बेटर तरीके से रहेगा, आपका प्रेशर भी नहीं आएगा। जैसे ग्रुप थ्योरी आपको मैं बता दूं, जैसे आप कॉम्पेट कोर्स में ग्रुप थ्योरी पे जाओगे, सिर्फ 3 लेक्चर हैं, 3 लेक्चर में पूरा ग्रुप थ्योरी खत्म है, उसी के अंदर गेट पीवाईक्यू भी करवा रखे हैं मैंने काफी सारे। तो ओवरऑल बाकी उन 3 लेक्चर के अलावा जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, या प्रैक्टिस सेशंस हैं, उनको आप प्रैक्टिस की तरह ही लो, उनको आप कॉन्सेप्चुअल लेक्चर के अंदर कैलकुलेट करके फिर अननेसेसरी खुद के ऊपर बर्डन मत डालो। ओके। Yes, sir. Thank you, sir. ओके ओके आर्यन। So, Rich, in the chat, there you can take the next हाँ, doubt. ओके। सो तेजस आदित्य का डाउट है कि लाइक पीवाईक्यू सोल्व करने में काफी टाइम लग रहा है, और मैं जैसे पीवाईक्यू सोल्व कर रहा हूँ वो सही तरीका है या नहीं। और गेट ओवरफ्लो पे नया फीचर आया है कि हम पीवाईक्यू को एज अ टेस्ट दे सकते हैं, तो वो मतलब क्या सही रहेगा, या फिर कन्वेंशनल वे से ही मतलब बुक में से करना चाहिए? तो लाइक ओवरऑल पीवाईक्यू को कैसे हैंडल करना चाहिए, लाइक यही डाउट है ना तेजस, कि हाउ टू डू पीवाईक्यू। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट। ओके, तो लाइक जो पीवाईक्यू है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर योर गेट प्रिपरेशन, क्योंकि पीवाईक्यू के बेसिस पे आपको आइडिया आएगा कि क्या गेट वाले पूछेंगे। तो मतलब अगर पीवाईक्यू में टाइम हो रहा है तो लगने दो, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर आप पीवाईक्यू सोल्व करने में टाइम लगा रहे हो। आप मतलब शुरुआत में जब पीवाईक्यू सोल्व करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन जब आपका कोई फेवरेट टॉपिक आया तो उसके पीवाईक्यू फटाफट हो जाएगा। तो मतलब ऐसे करके टाइम मैनेज करो। एक और आइडिया है कि अपने आप का टारगेट बनाओ, कि आज मुझे 100 पीवाईक्यू करने हैं, आज मुझे 150 पीवाईक्यू कर, मतलब ऐसा कुछ भी। अगर आप अपने आप टारगेट बनाओगे तो आपको एट द एंड ऑफ डे यू हैव टू लाइक, चलो अभी सिर्फ 30 पीवाईक्यू बचे हैं तो मैं फटाफट कर देता हूँ। अगर आप टारगेट के बिना चलोगे तो लगेगा कि लाइक अभी तो मेरे 300 पीवाईक्यू बाकी है तो मैं कल करूंगा। वो तो मतलब पीवाईक्यू ज्यादा ही लगेगा। तो ट्राई ट्राई करो कि एक दिन का टारगेट बनाओ कि आज मुझे 80 पीवाईक्यू करने हैं। अगर आज शाम हो गई 9 बजे तक मेरे सिर्फ 70 हुए तो फिर आपको लगेगा कि सिर्फ 20 ही बाकी है। तो फिर आप अपने एफर्ट्स लगाओगे वो 20 सोल्व करने में। और अब आप अपने आप को मोटिवेट करोगे कि चलो भाई 20 ही है तो मैं कर लेता हूँ। ये एक मेथड है पीवाईक्यू को टैकल करने के लिए। मैंने पर्टिकुलरली ये फॉलो किया था कि मैं जब पीवाईक्यू सोल्व करता था तो मैं अपने आप का टारगेट सेट करता कि आज मुझे 100 पीवाईक्यू करने हैं। तो मतलब वो हो जाता तो मेरा दिन मतलब वहां से खत्म, और नहीं होता तो मैं ट्राई करता था कि जहां तक मैं अपने आप को पुश कर पाऊँ। तो यस, ये एक है। एंड लेट्स कम फ्रॉम गेट ओवरफ्लो फीचर। So like yes, you can give you can solve PYQ as a test, but for me it not work, because like whenever I appear for test, then like I judge myself based on mark. Like if I solve 10 PYQs together, then there will be some marks from that 10 questions. So if I get less mark, then I underconfident. If I get more mark, then I confident. तो लाइक वो मुझे चीजें मतलब उस टाइम पे मेरे को मतलब वो फील नहीं करना था। तो उस वक्त मैंने पीवाईक्यू को एज अ मतलब वो टेस्ट नहीं दिया था। तो लाइक अगर आप अपने आप को मार्क्स के बेसिस पे जज नहीं कर पाते हैं या मतलब वो चल जाता है, तो फिर आप जा सकते हो पीवाईक्यू को एज अ टेस्ट सीरीज के लिए, मतलब एज अ टेस्ट टेस्ट तरीके से। तो और भी आई थिंक अगर आप जो गेट और फ्लो की बुक है वहां से भी करोगे तो भी वो मतलब
वो बेस्ट वे है पीवाईक्यू करने के लिए, क्योंकि टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आएंगे। देन आपको मतलब पता चलेगा कि अगर ये टॉपिक के 20 पीवाईक्यू है, मैंने 20 में से 15 कर लिए, मतलब वो टॉपिक आपका अच्छा है। अगर कोई कोई टॉपिक के 30 पीवाईक्यू है, उसमें से आपको सिर्फ 10 या 15 अपने आप से हुए, बाकी के क्वेश्चंस में आपको गेट और फ्लो के आंसर्स की हेल्प लेनी पड़ी, तो आपको पता चलेगा कि आपका ये कंसेप्ट वीक है और आपको यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। तो मतलब कन्वेंशनल वे आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू यू अपीयर फॉर टेस्ट एज अ यू अपीयर फॉर पीवाईक्यूज एज अ टेस्ट। सो तेजस, मतलब आपका आंसर मिल गया? कैन यू कंफर्म? ओके ओके ओके। ऐसा तो नहीं है ना। हाँ ओके हाँ। तो सर मैं थोड़ा सा अपना रिफ्रेश करना चाहूँगा क्वेश्चन। एक्चुअली ओके जो जो नया फीचर है उसमें एज इट इज एज ए की फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन, लाइक राइट नाउ मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन में अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन हैं पे पैकेज के, राइट। ओके तो उसको उसमें जो व्यूअर है उसमें उसको ऐसे 3 टेस्ट में बांट रखा है, 15 15 15 में। तो अभी अब जैसे मुझे जो फील होता है ना कि जैसे मैं कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता हूँ। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि लाइक मैं 15 15 के इसे सेट में करूँ, एंड ताकि उससे मेरी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बढ़े। एंड लाइक मैंने 15 कर लिया, अब ऐसा नहीं 15 कर लिया मैं सोल्यूशन दे, मैं 15 कर लिया। देन आई एम की मैं जो मैंने नहीं किया मैं उसको वापस एक अटेम्प्ट दूंगा, मतलब एज लाइक जैसे बुक में देते हैं कि एक फुल अटेम्प्ट, तो वैसे पूरा दूंगा। देन आई कैन लाइक मेक एन एनालिसिस, और या मैं लॉग बुक उसकी बनाऊं, या मैं उस माइंडसेट से मैं सोच रहा ओके। अच्छा, हाँ ये तरीका सही है कि मतलब आप अगर कुछ लॉग बुक वगैरह मेंटेन करोगे कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से नहीं, कौन से टॉपिक नहीं है, तो वो एक आई थिंक सबसे बेस्ट है। क्योंकि लॉग बुक तो मतलब मेंटेन करने से पता चलेगा कि क्या मतलब कमी रह गई है कहीं, नहीं कौन से टॉपिक अच्छे हैं। तो या अगर आप इस तरह से अपना आपका मतलब वे जो परफेक्ट है, अगर आप उसमें से अपने आप को मतलब मैनेज कर पा रहे हो, तो फिर आप करो। मतलब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात थी कि आप पीवाईक्यू को एज अ मॉक दो, वो भी अच्छा है। क्योंकि लाइक लाइक व्हाट विल हैपन इफ you do PYQs as a mock, then you like you have to compulsory solve something, some 50 20 question in particular timeline. So you will push yourself to solve those questions. So yeah, that's the like positive side of doing PYQs as a mock. हूँ। एंड ऑल्सो लाइक जो लॉग बुक है लाइक पूरी ऐसा जैसे वो एनालिसिस नहीं होती कि ये गलत हुआ यूट्यूब पर इसमें क्या सोचा वगैरह। तो इट्स लाइक I've heard कि like only for like tests and like those they topics don't like, do you recommend कि for feedback is also used to make topic or just for the testings? Okay. So for PYQ, you can also like maintain the logbook, but don't write each and every PYQs in your logbook. Just write whichever you feel little bit harder side. Like if you feel particular topic you feel harder, that in particular topic you solve PYQs and you can't able to solve all PYQs by on yourself, then you maintain then you mention that particular topic or particular PYQs in your logbook. So I also recommend you to maintain your PYQs in your logbook. So it will help you when you revise PYQs again. Yes, thank you. And just kind of like right now, how I'm preparing कि like I'm doing a job, right? So मेरा ऐसा होता है कि मैं जॉब में 1 to 2 आवर में स्क्वीज कर पाता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा ऐसे कंफर्टेबल होता हूँ। एंड मैं घर आके लेट्स से 4 to 5 आवर्स मैक्स। सो व्हाट वुड यू डू इससे कि मिनिमम डे में इससे कम तो नहीं जाऊंगा, कि मुझे ये हो कि मैं कम से कम लाइक एज अ एज अ वे टू बूस्ट माय सेल्फ कि मैं इतना तो मैं कर रहा हूँ, तो आई एम गोइंग नो राइट ट्रैक, तो मैं ऐसे कुछ कम नहीं कर रहा हूँ लाइक दैट। सो Okay. लाइक मिनिमम लाइक नंबर ऑफ आवर्स उससे कि इससे कम नहीं चाहिए। जैसे आप फोर्थ ईयर Like में if you फोर्थ ईयर में आपने किया तो कॉलेज के साथ आपने किया मतलब हाँ समझ गया। लाइक अगर मतलब ऐसा नहीं है कि हर रोज आपको 4 घंटे 5 घंटे या पर्टिकुलर 6 घंटे या मतलब ऐसा कोई टाइम डेडिकेटेड करना।
सिर्फ इतना ध्यान रखो कि कभी भी आपका फ्लो ना टूटे। मेरे लिए भी मतलब काफी ऐसे दिन थे जब मैंने सिर्फ आधा घंटा या सिर्फ मैक्स टू मैक्स 1 आवर मैंने पढ़ाई की हो। ऐसा भी कई बार हुआ है। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है या फिर ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप हर रोज 6 6 घंटे पढ़ो, या अगर आपने कभी मिस कर दिया तो हो ही नहीं पाएगा। तो वो बेटर है। ट्राई करो कि लाइक 3 to 4 आवर यू कैन पुट योर आफ्टर योर जॉब। सो वो एक लाइक अच्छी साइट पे है कि अगर आप जॉब के बाद 3 या 4 घंटे दे पा रहे हो गेट के लिए, तो आई थिंक वो इनफ है डेली बेसिस पे। ओके सो थैंक ओके। यू। So let me take the next doubt, Rich. A student Rajkumar is asking my question to Deepak sir. I recently enrolled in GATE DA complete course. I have started combinatorics playlist under the probability and statistics. Thank you for the excellent lectures. They are incredibly clear and helpful. My question is that after the main lecture, there is also a summary lecture. If I have already understood all the concepts covered in the main lecture, is it still necessary to watch the summary lecture or can I skip it? So the answer, Rajkumar, can you skip it? The answer is yes. You can skip it if you have already completed. If you have already completed the main lectures, the main course, then definitely you can skip the summary lecture, summary course. Okay, and the second thing, the better suggestion that I will give is that for now you can just skip the summary lectures. Okay, you move on, and then after maybe 15 days, maybe 20 days, or maybe after 1 month, for revision sake, you can at a speed of 2x you can watch the summary lectures. Okay, so it will help you in the revision of combinatorics, and also very quickly you will be able to do the revision because you have already studied the main course. So this summary lectures, these will be used as a revision lecture for you. Okay, so maybe for now you can skip it. Okay, and maybe after few days, maybe 20 days, 1 month, you can watch the summary lectures at a 2x speed, so that you will do the revision. Okay, it will help you in the revision. That's it. Very simple. Okay, so I hope it is clear, Rajkumar. Also, this combinatorics for GATE DA. In 2026, there were many questions from combinatorics. Rich, do you remember in GATE DA? In GATE DA, we were not expecting, the questions on distribution of objects into boxes. But if you Yes. remember in GATE DA 2026, there was a question based on this, I think, IODB template. हाँ हाँ। आयो लाइक वो चार में से एक टेम्पलेट के रिलेटेड कुछ था, आईओडीबी, हाँ, जीओआई, yes, yes, yes. आईओआईबी। So that's what I am saying, Rajkumar, that combinatorics is playing a very good role in GATE DA, particularly in GATE DA 2026. It was very important, combinatorics. Okay. So that is the reason this year I have added extra lectures in the GATE DA combinatorics playlist. Okay. Last year, this lecture we had in the GATE CS playlist, but we did not have in the GATE DA playlist. This year, I have added these lectures, or I can say these extra lectures, in the GATE DA playlist also, in the main course also, in the compat course also, in both the courses. So if you have studied from the main course, you can skip the compat course. Okay, and after 1 month you can watch the compat course at a 2x speed for revision. Okay, so Rich, you can take the next out. ओके, सो नेक्स्ट डाउट है कि आपने कौन सी मिस्टेक की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो आपने सेकंड अटेम्प्ट में इम्प्रूव की, और वो मैं ना करूँ। तो लाइक अगर मैं अपनी मिस्टेक्स को लिस्ट लाइक प्रायोरिटी वाइज सेट करूँ, तो पहला था डोंट डिड रिवीजन इन पोलाइट मैनर। देन सेकंड मिस्टेक इज डोंट डू पीवाईक्यूज इन अ लाइक, अच्छे से नहीं किए थे पीवाईक्यू, किए थे लेकिन लाइक जितना मतलब एक पीवाईक्यू पे एनालिसिस करना चाहिए था, जितना समझना चाहिए था, वो नहीं किया था। और अगर मैं अपनी टॉप टू मिस्टेक्स को रखूँ, तो एक था रिवीजन, एंड देन अदर वन इज डोंट रीड पीवाईक्यूज इन गुड वे। तो लाइक ये दोनों मिस्टेक ही मैंने मेनली इम्प्रूव की थी मेरे फोर्थ ईयर में। तो या लाइक यही दो मिस्टेक थी। और टेस्ट सीरीज का तो मुझे टाइम नहीं मिला था थर्ड ईयर में, मैंने लाइक एक भी टेस्ट सीरीज के लिए अपियर नहीं हुआ था।
तो लाइक वो मैं अपनी मिस्टेक तो नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था टेस्ट सीरीज के लिए। और टेस्ट सीरीज भी लाइक वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू लाइक इम्प्रूव माई नॉलेज। तो यार लाइक तीन चीजें मैं बोल सकता हूँ: रिवीजन, पीवाईक्यूज एंड टेस्ट सीरीज। Rich, there is the next doubt from Ravi Yadav. Before solving PYQs of the current subject, can I solve weekly test, textbook questions, etc.? So we will see what was your approach. But one thing I want to mention here, Ravi, textbook questions, please don't solve by yourself. Okay, we are already taking the textbook questions and we are putting in our lectures, in our weekly quizzes, in our test series, everywhere we are putting the standard books questions, standard university, top university questions. Okay, we are known for that. If you are a Go classes student, if you are learning with Go classes, then not for a single moment you should think that okay, I need to solve the exercise questions of standard books of top universities, because this is what we are doing. Okay, this is what we are known for, I can say. So every day we are putting, the top universities questions, standard book questions in our weekly quizzes, in our test series, everywhere, even in our lectures, in the DBMS course, in the computer organization course, in discrete maths course. Many times you will see I'm taking the questions from the standard books. That okay, this is the question from Ulman, this is the question from Kenneth Rosen, this is the question from Korth Nawate. So please understand that this is to all the Go classes students, that textbook questions and these top university exercise questions, this is what you don't have to do by yourself. You just have to solve the weekly quizzes, you just have to watch the lectures, you just have to attempt the topic wise test, subject wise test series. That's it. This is what you need to do, and everything will be covered. This is my promise to you. Okay, so now Rich, the doubt of Ravi is that before solving the PYQs, can I attempt the weekly test? Basically, the order. Okay, for every subject, we have PYQs, we have weekly quizzes, we have topic wise test. So, for them, what was your order? Okay. So like when you study any particular subjects, like अगर हम बात करें डीएसए की, तो लाइक डीएसए में अभी आपने आज या मतलब पिछले 3 दिन में पढ़ा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड सब कुछ थीटा हो, बीटा हो वगैरह। तो उसके वीकली क्विज़िस एक बार दे दो। मतलब भले आपका सब्जेक्ट खत्म हुआ या ना हुआ, लेकिन वंस द पर्टिकुलर टॉपिक विल एंडेड, देन जस्ट गो फॉर दैट वीकली क्विज। तो ऐसे करके वीकली क्विज आप अपने खत्म करो। यस, मतलब जैसे ही सब्जेक्ट खत्म हो, आपके 1 या 2 दिन में सारे वीकली क्विजेस खत्म हो जाने चाहिए। मतलब ये एक अच्छा वे है वीकली क्विजेस को टैकल करने के लिए। देन यू कैन गो फॉर पीवाईक्यूज एंड देन मूव टू द टेस्ट सीरीज फेज। तो ये एक वे है कि लाइक सब्जेक्ट्स के मतलब पैरेलल ही आप वीकली क्विजेस को अपियर होते चलो। जैसे ही कोई पर्टिकुलर टॉपिक खत्म हुए, उसके वीकली क्विजेस दे दो। then another topic, another weekly quiz. So yeah, you can do in that way also. So, related to this, I'm putting one message also in the Telegram announcement group. I'm putting one message. Okay, I've already put this message, I think 2 months back, but I'm again putting this message in the announcement group. Okay, right now I am doing it, related to, in which order we should attempt the weekly quizzes, PYQs, topic wise tests, okay, DPPs, so like that. Okay, so in which order we should do this? Related to that, one message I have put. Just now I have put it. Okay. So after the session is over, you can read it. Okay. So Ravi, your doubts are clear. Okay. So again, Ravi, I am saying that these textbook questions and these top universities questions, okay, all these we collect and we put in our quizzes and test series. Okay. So that you don't have to do it you don't have to do it by yourself, because if you open a textbook and in the exercises, many questions will be, irrelevant to get. Out of maybe 20 questions, maybe 10 questions will be relevant to get, and the remaining 10 questions will be irrelevant. So you will be wasting a lot of time in those irrelevant questions. What we do, those 10 relevant questions we collect and we put in our quizzes, in our test series, in our DPPs, so that you will find them. Okay, you just have to follow the Go classes and automatically you will find those questions somewhere. Okay.
Okay, Yes. so next doubt है सानिध्य का कि like my doubt is how to approach analytical observation type question in exam. It takes so much time to solve such exam. Okay, so let's assume that you are sit in the exam, सानिध्य. Okay, तो लाइक गेट इज नॉट एन एग्जाम कि आपको 65 या 65 क्वेश्चन सोल्व करने ही है. गेट वाज नेवर अबाउट दैट. You have to skip some subjects and that is the also like tricky part की कौन से क्वेश्चंस आपको स्किप करने हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको टैकल करने हैं. तो वो भी आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना होगा ड्यूरिंग योर टेस्ट सीरीज फेज कि इस तरह के क्वेश्चन आया तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो मुझे ऐसे क्वेश्चंस को पहले तो छोड़ ही देना है, फिर अगर बाद में टाइम मिले तो मैं टैकल करूंगा. तो मान लो कि अभी आप आज ही गेट एग्जाम दे रहे हो और आपको पर्टिकुलर एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चंस में टाइम ले रहा है, तो आप छोड़ दो. मतलब पहले राउंड में तो छोड़ ही दो. देन आफ्टर इफ यू हैव टाइम देन यू कैन टेकल द पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ लेट्स अज्यूम योर सिनेरियो लाइक अभी आपके पास गेट एग्जाम नहीं है, गेट एग्जाम के अभी 6-7 मंथ बाकी है. देन व्हाट कैन यू डू कि टेस्ट सीरीज में जहां जहां पे ऐसे एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए उसमें आप अपने आप की पैटर्न फाइंड करो कि क्या मैं ये मतलब कर पा रहा हूँ या फिर इतना टाइम देने के बाद भी मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं. अगर कुछ पर्टिकुलर टाइम डेडिकेटेड करने के बाद भी अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो आप उसको स्किप कैटेगरी वाले क्वेश्चंस में रखो, क्योंकि स्किप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है गेट में. लाइक यू कांट even you never solve all 65 question in your gate paper. Never. You have to skip some question. तो अभी आपके पास टाइम है तो मतलब फाइंड करो कि कौन से क्वेश्चंस में आपको टाइम लग रहा है, कौन से क्वेश्चंस में आप टाइम देने के बाद आपको लग रहा है कि मैं सोल्व कर पाऊंगा. ऐसे ऐसे करके अपने कुछ कुछ कैटेगरी बनाओ कि ये क्वेश्चन स्किप में आएगा, ये क्वेश्चंस को मैं टैकल करूंगा ही, ये क्वेश्चंस को मैं बाद में टैकल करूंगा. ऐसे करके डिवाइड कर सकते हो. And to improve that particular grip on that topic or that type of questions, you can do as much as practice in PYQs, in test series, in weekly quizzes. Whenever you whenever you get that particular type of questions, then just some extra effort on that question so that you can like can find the what's the exact mistake you are doing on that questions. So like ये मतलब ऐसे ही मतलब 2-3 तरीके ही है ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए कि अगर पर्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं है मेरे को आ रहा है तो फिर आप जितनी प्रैक्टिस हो जाएंगे उस उतना ही आपको मतलब उस पे ग्रिप आती जाएगी. एम आई एबल टू सोल्व योर क्वेश्चन अनिता की मतलब और भी कुछ डाउट है? ओके. यस, नेक्स्ट मीना का डाउट है कि व्हाई डिड यू चूज आईआईटी मद्रास ओवर आईएससी बेंगलोर और आईआईटी बॉम्बे? What course characterize made you choose the course theaters? Okay. First of all, I don't choose IIT Madras over ISC. IIT Madras choose me over ISC. Like, okay, so मुझे ISC नहीं मिला था इस 2026 में, इसीलिए मैंने मद्रास चूज किया. Now let's go for IIT Madras versus IIT Bombay. There is no much difference between these two colleges, like IIT Madras or IIT Bombay. फॉर मी इट्स ओनली वन और टू पैरामीटर कि आईआईटी बॉम्बे में इंटर्नशिप्स अलाउड नहीं है और आईआईटी मद्रास में इंटर्नशिप्स अलाउड है. लाइक आईआईटी मद्रास में कैसा है कि अगर आप अ, ये- जब भी आप आईआईटी मद्रास में एंटर होगे यू आर एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप. सो हमारे लिए आई थिंक 1 अगस्त से हमारी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी. तो लाइक वो एक मुझे बेनिफिट दिखा आईआईटी मद्रास का. और अगर आप इंटर्नशिप्स नहीं भी करते तो भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एमटेक में, तो आईआईटी बॉम्बे भी मतलब ले ही सकते हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है. एंड ऑल्सो फॉर दिस ईयर और लास्ट ईयर देर आर some number of people unplaced in IIT Bombay as compared to ISC and IIT Madras. So for that reason also like many people choose IIT Madras over IIT Bombay and ISC Bangalore over IIT Bombay. So for me that's the two reason.
So Mina, actually, you can watch our co discussion sessions. Okay, there actually we have discussed about it, that you can watch co-op round 5 discussion session, I think. Rich, you were Yes, there, yes. right? हाँ In the round 5 हाँ हाँ discussion session, Hana? So Mina, on the Go Classes YouTube channel, you can just search on the YouTube COP, COAP Go Classes. You can search it, and then basically after every COP round we have had a discussion session. So in one discussion session of, I can say, COP round 5, after COP round 5 we had a discussion with Rich on the same question. Okay, so you can just watch it. And I think right now you don't have to worry, you are just a gate aspirant. Immediately after the gate exam you can watch those COP sessions. Okay, I think that will give you, some idea, because you will be going for the counseling. So those, I can say, the COP discussion sessions will be very helpful for you, but after February. For now I will recommend that you don't watch it. Okay, that's not for yes. you, I can say, right? You are a gate aspirant, you don't have to watch it right now, but you can watch in the February. Okay. Yes. ओके, सो नेक्स्ट सूरज का डाउट है कि मैं रिवीजन भी कर रहा हूँ, लेक्चर्स के क्वेश्चंस भी सोल्व कर रहा हूँ, और वीकली क्विज़िस में मार्क्स नहीं आ रहे, तो क्या ये नॉर्मल है या मेरे ही नहीं आ रहे? मैं एक अपने आप की स्टोरी बता दूं। मैंने सबसे पहले डीएम के जी मैंने टेस्ट सीरीज में मैं अपियर हुआ था। तो सबसे पहली टेस्ट सीरीज थी फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की, या प्रोपोजिशन लॉजिक की, दोनों की कंबाइन होगी शायद। मेरे उसमें मार्क्स थे 2.67 आउट ऑफ 25। तो मतलब उस वक्त तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मतलब जो मैंने अब तक जो पूरा का पूरा डीएम पढ़ा उसका क्या मतलब, अगर 2.5 मार्क किया है तो मतलब उसका क्या मतलब इतना डीएम पढ़ने के बाद। लेकिन मैंने लाइक मेरे एक इंटरव्यू में भी मेरा जब इंटरव्यू हुआ था उसमें भी एक बात बोली थी, अभी भी बोल रहा हूँ। इफ यू गेट लेस मार्क देन यू फील दैट यू आर लकी, क्योंकि अब आपको वो पर्टिकुलर टेस्ट को एनालिसिस करने का मौका मिलेगा अच्छी तरह से। क्योंकि मान लो कि आपको कोई भी एक टेस्ट में 25 में से 25 मार्क आ गए, देन यू डोंट पुट मच एफर्ट टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर टेस्ट आफ्टर getting the mark. And if you get like 5 mark, 10 mark, or any single digit mark, then you will put your efforts to solve that test and analysis that why you can't able to get marks in that particular test. तो अगर मार्क्स कम आए तो बिल्कुल मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलती की है, या आपसे हो नहीं रहा, या आपने पूरा का पूरा जो अपनी प्रिपरेशन की वो कुछ इतनी एफर्ट मतलब इतनी मायने नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्स कम आए, उस टेस्ट को सीरियसली थोड़ा लो, उसको एनालिसिस करो कि किस टॉपिक की वजह से मार्क्स कम आए, किस तरह के क्वेश्चंस मेरे गलत हुए। फिर फिर मूव ऑन करो, देन नेक्स्ट टेस्ट के लिए अपियर करो। ऐसे करते करते मतलब 2-3 महीने कंटिन्यूसली ऐसे करते रहोगे, धीरे धीरे आप अपने आप को भी मतलब महसूस करोगे कि मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो लाइक एडवाइस यही है कि अगर मार्क्स कम आए, जरा सा भी पैनिक मत करो, उसको सोल्व करो, उसको एनालिसिस करो, अपने आप की गलती फाइंड करो कि क्या मिस्टेक हो रही है ना, मार्क्स इंप्रूव हो ही जाएंगे। सूरज, एम आई एबल टू क्लियर योर डाउट? ओके, देन नेक्स्ट वी हैव ईश्वर। I have finished the DM after full revision. I started EM next. Then I aim to complete the remaining subjects by end of the October. Okay, like currently, if you just completed DM and started EM, then you have to like push yourself to complete your all subjects by end of the October, because it is quite, I say, quite hard to complete all subjects by end at the end of the October. For that, I think you have to push yourself, or you can expect that you will complete your syllabus by end of the November. Okay, then uh, okay, Arpan, there are
Here some questions, for example, in TOC, there are some questions of MSQ where the particular counter example does not click in mind. How to improve? Okay. लाइक अगर मैं पर्टिकुलर अपनी मतलब गो क्लासेस के टेस्ट सीरीज की बात करूं तो टीओसी की टेस्ट सीरीज काफी मतलब एडवांस लेवल पे है। अगर उसके क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं तो फिर आप आपका टीओसी का नॉलेज एकदम कंप्लीट है। अगर आपको टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस नहीं बन रहे देन यू हैव टू एनालिसिस फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन because you will learn lot of things in your TOC test series because I personally feel that कि टीओसी की टेस्ट सीरीज आई थिंक सभी सब्जेक्ट्स में से टीओसी का जो पर्टिकुलर 5 टॉपिक वाइज टेस्ट है वो आई थिंक सबसे बेस्ट लेवल पे थे क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर वो आपसे न बन पाए तो कोई भी मतलब इसी दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चंस है ही एनालिसिस करने के लिए। तो या वो एक बात है। एंड इफ यू फेल कि पीवाईक्यूज में आपके टीओसी के क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे देन यू हैव टू लाइक एनालिसिस कि किस तरह के क्वेश्चंस नहीं बन रहे किस तरह के काउंटर एग्जांपल आपके दिमाग में नहीं रहे क्योंकि व्हाट आई फील कि टीओसी के पीवाईक्यूज एज कंपेयर टू व्हाट वी प्रैक्टिस और व्हाट वी लर्न इजी है। लाइक दे जस्ट दे कांट modify questions much in TOC. They have to put straightforward questions like, is this a regular language or what is the type of language or TFA and FA related to speech. मतलब वो इतना कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं बना पाते हैं गेट के एग्जाम्स में। तो या लाइक इफ यू डोंट able to click the counter example then just do proper analysis of that particular questions and think if why you can't able to do that why you can't able to think about that counter example ऐसी क्या चीज आपने मिस कर दी कि आपसे बन नहीं पा रहा है वो क्वेश्चन। ओके आई एम एबल टू सोल्व 50 to 60% in AIMT POC। या दैट्स द लाइक वेरी गुड पेस ऑफ योर लाइक वो मतलब काफी अच्छी चीज है कि आप अगर 50 to 60% POC के क्वेश्चन सोल्व कर पाए हो AIMT या सीरीज में then it is very good। don't much panic about it। जस्ट फोकस ऑन पीवाईक्यूज लाइक आपका सबसे पहला फोकस पीवाईक्यू होना चाहिए उसके बाद टेस्ट सीरीज होनी चाहिए मतलब ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि पहले सब पीवाईक्यू एकदम परफेक्ट देन यू हैव टू मूव फॉर टेस्ट सीरीज। पीवाईक्यूज है पैटर्न फाइंड करने के लिए टेस्ट सीरीज है क्वेश्चंस में से टॉपिक सीखने के लिए। फॉर मी पर्सनली लाइक मैंने ऐसे दोनों को टैकल किया था कि पीवाईक्यू में सोल्व करता था पैटर्न फाइंड करने के लिए कि गेट वाला क्या पूछेंगे मेरे को एंड मैं टेस्ट सीरीज को टैकल करता था कि कुछ नया क्वेश्चंस मिले जिसमें से मुझे कुछ नया सीखने को मिले। तो ये दो अप्रोच लेके चलो तो फिर आपको टेस्ट सीरीज में अगर कम मार्क आए फिर भी आप डिसअपॉइंटेड नहीं होगे कि मुझे कम मार्क क्यों आए। देन यू फील लकी कि यू हैव टू यू हैव गेट चांस टू लर्न समथिंग न्यू। तो इज दिस ओके अर्पण? नाउ नेक्स्ट वी हैव कृष्णा राव। आई एम from non-CS background and have been out out of touch from exams and preparing for a while. I just started get year preparation in June. Okay. Sir, could you please suggest me on how many hours the is best to study every day, which job? Also, any strategy should follow. Since I was also having the same doubt process of finishing syllabus as early as possible. Target was September, then practice question. Okay. If you target particularly get DA only, then then like first of all, get DA syllabus is quite low as compared to get CS. So like if you put like 4 to 5 hours daily, then get DA syllabus is I think uh, easily cover up by the end of September. So it's not big job for you to complete get DA syllabus at the end of September. For how to tackle subjects, it's like watch lectures. Then if you have time, then make notes. Otherwise, get some other toppers notes or annotated notes. So yeah, you can use that. And then you have to do PYQs and practice. And I think for Get Here, there are lot of
test series are a lot of topic wise test series is there in test series. So you can also uh, learn through that test series. तो कृष्णा, लाइक और भी कोई डाउट है? मैंने आपका डाउट अच्छे से सॉल्व कर पाया? हेलो कृष्णा। ओके ओके ओके, यू कैन आस्क। So Krishna is asking the follow-up doubt. Meanwhile, let me answer one doubt by Sakshi Sonwani. Hello, sir. I'm starting now. So I'm really late. I'm really behind the schedule and I keep feeling late and slow and full of self-doubt. When I sit down to study, I get bored and sleepy within minutes and I struggle to retain what I watch. How do I build consistency when you were starting out, and how do I deal with this feeling of being left behind? So basically, रिच, जब आपने गेट की तैयारी शुरू करी थी, यू टोल्ड मी दैट यू स्टार्टेड इन मई 2024. यस। ओके, तो जब आपने गेट की तैयारी शुरू करी थी, शुरू में कुछ ऐसा होता था? बेसिकली साक्षी हैज स्टार्टेड, जस्ट नाउ स्टार्टेड, एंड शी इज फीलिंग स्लीपी, नॉट फीलिंग लाइक स्टडी, एंड she is feeling like left behind, that okay, I'm very late, how do I do it? And because of that feeling of left behind, she is sometimes our brain makes us even more lazy, and we get even more left behind. So basically it's like a cycle kind of thing. So can you answer this doubt? हाँ सर, मतलब अगर आप सिर्फ लेक्चर्स को लाइक एज अ मूवी या एज अ लाइक ऐसे ही करके बैठ के देख रहे हो, तो फिर आपको ऐसा होगा ही कि लाइक स्लीपी फील हो रहा है, या फिर आपका पेस जो है वो स्लो चल रहा है। तो लाइक कीप एक्टिव योर सेल्फ ड्यूरिंग वॉचिंग लेक्चर। लाइक अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हो, तो भी एक ऐसे रफ वर्क करते रहो कि जो भी कुछ सर ने मतलब क्वेश्चंस आया है या कोई टॉपिक चल रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ रफ वर्क करते रहो, कुछ ना कुछ लिखते रहो, अपने आप मतलब कुछ सोल्व करते रहो, तो उसकी वजह से आप अपने आप को एक्टिव रख पाओगे ड्यूरिंग वॉचिंग लेक्चर। So, and for that, you will not feel sleepy while you watching lectures. And अभी आपने सिर्फ शुरू ही किया है, तो लाइक शुरू में तो होगा ही, क्योंकि यू हैव टू गो लॉन्ग। तो अगर शुरू में हुआ तो इतना कुछ पैनिक करने की बात नहीं है। बट यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, लाइक यू हैव टू बिल्ड हैबिट टू स्टडी 8 to 10 hours to complete your syllabus, because like if you just started, then you have to put much efforts as compared to others, because others are already started, like I don't know, but maybe most ofly like गेट के फेब्रुआरी के बाद अगर किसी को अगले साल की गेट टारगेट करनी है, तो मोस्टली लोग मार्च अप्रैल में शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको ऐसा अंदर मतलब फील हो रहा है कि आप लेट हो रहे हो, देन जस्ट पुश योर सेल्फ, लाइक वही एक रास्ता है कि मतलब आप अपने आप को कैसे थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंट रख सकते हो। Sakshi, actually, just I want to mention one thing. When I started my GATE preparation in 2017, 2016, okay, at that time, I also started around June. So after the BTech was over, then I started the GATE preparation. And just to tell you one thing, that in my BTech, I did not study anything. I did not have any knowledge of computer science, to be honest. I had 14 backlogs. So you can just think about it, that I had really zero knowledge of computer science. I started in the month of June, and to be honest, I also had these doubts in my mind that okay, what if I will not make it? Because I was seeing all around me, people who were BTech toppers. Okay, from my batch in my BTech, basically from RTU Kota. Okay, it's a government college in Kota, and from that college, from my batch, the two students were also there.
when I started my GATE preparation, they also started GATE preparation, and they were toppers of my batch. Out of 96 students of my BTech batch, I was maybe around, my rank was, I think, maybe 90, 91. Okay, out of 96, I was at the 90, 91 place, and they were in the top three. And they also started the GATE preparation. And I was thinking, for only for 2 days, I thought that if they are also starting preparation, I'm also starting preparation. How can I go ahead of them? They are already toppers of BTech. Then how can I go ahead of these two? If I cannot get ahead of these two, then how can I get ahead of these, all the remaining 200, 300 people? And if I cannot get ahead of these 300 people, then how can I get ahead of, maybe 10,000 and maybe 80,000 students who are attempting the GATE CS exam? These type of thoughts were there in my mind also in the beginning, in only for 2 days, to be honest. Then immediately I thought that, okay, that in my mind I just switched. It's like switching the mindset. I just switched my mindset, and I thought that, okay, let me do the work, let me put my efforts, I will see whatever will happen, will happen. Okay, this mindset, to be honest, in just 2 days I switched my mindset. And I thought, okay, thinking like these unnecessary things, making this type of calculation will definitely not going to help me. Okay, I already have 14 backlogs. Then I only have this way, I don't have placement. Then what to do? Then the only thing that I can do is put my efforts. And then from that day onwards, I started putting my efforts. And I was just studying, I was just studying like that. And one more thing, every day, at the end of the day, I was feeling very happy. I was at the top of the world because I studied something new, I got to understand some new topic. Even if it was, big O, theta, rich, basically I started with algorithm subject. And I think in the first lecture I got to understand, these टाइम कॉम्प्लेक्सिटी Okay. थिंग्स, कि हाँ. अगर कोई व्हाइल लूप दिया हुआ है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालनी है, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। अगर मान लो वो नेस्टेड लूप है तो कैसे निकालनी है। ठीक है, ये बिग ओ का मतलब क्या है, थीटा का मतलब क्या है, ये सारी चीजें मुझे पहले दिन पता चली। आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बाकी लोगों के लिए ये चीजें कैजुअल थी, क्योंकि उन्होंने बीटेक में पढ़ी हुई थी, वो बीटेक के टॉपर थे। हम तीन लोग ही थे जो, क्योंकि मैं उनके साथ डिस्कशन करता था, हम तीन लोग एक साथ ही रहते थे। एक ही फ्लैट ले रखा था, उसमें हम तीन के अलग अलग कमरे थे। और मैं उनसे डिस्कस करता था। उनके लिए वो चीज कोई, मतलब कोई टॉप क्लास चीज नहीं थी। उनके लिए कैजुअल था कि यार ये चीजें तो पहले से आती थी। और मैं, आई वॉज टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि यार बिगो समझ में आ गया, थीटा समझ में आ गया। ठीक है, इनके ऊपर तो मेरे को बैक लगती थी। मतलब जब सेमेस्टर के अंदर क्वेश्चन आते थे, मुझसे सोल्व नहीं होते थे। So after every day, I was feeling top of the world because I was understanding some new concepts of computer science. I was learning something new, and slowly, after the 6 or 7 months in GATE 2017, I got all India rank 1278. This was my all India rank, and this I got, because I was also attempting the backlog exams. Okay, I was going to attempt the backlogs. So basically, this is a separate story. But the point is that after 6 to 8 months, I got this rank 1278. And just, okay, I'm not, it's not like I'm demeaning those people who were studying with me. Okay, but I'm just saying that I went ahead of them. Okay, and then I was feeling very confident that with my efforts in just 6 or 8 months, I left, many people behind. Then definitely, if I put some more effort, maybe, for a few more months, if I put my efforts, then definitely in the GATE 2018, I can get a top rank. And this happened. Okay, I put my best efforts every day, and then eventually in GATE 2018, I got 67 rank. I and Rich, we share the same rank actually. Yes, रिच, sir. मेरी भी जो आईआईएससी बेंगलोर जब मैंने ज्वाइन किया था, तब मेरी 67 रैंक थी 2018 में। उसके बाद 2020 में मेरी 53 रैंक आई थी। तो बेसिकली जो जिस जिस रैंक से मैंने आईआईएससी बेंगलोर ज्वाइन किया था, वो रैंक और आपकी मेरी रैंक, मतलब वी शेयर इट। ऐसा मेरा रैंक है ना, तभी मैंने यही मतलब सबसे पहले देखा था कि मेरा ट्विन कौन है, कि मेरे जितना रैंक प्रीवियसली किस किस का है। तभी मुझे पता चला कि दीपक सर का ही है। तो फिर मतलब हो गया कि अब किसी को नहीं ढूंढना, अब मुझे मेरा ट्विन हाँ, मिल गया। लेकिन एक्चुअली किस्मत की बात ऐसी रही कि आपको, आपके टाइम में आईआईएससी बेंगलोर जो है वो जस्ट आपसे एक पहले खत्म हुआ है, मतलब 63 हाँ पे। यू वर द नेक्स्ट इन लाइन, आई कैन हाँ, से दैट। 63 भी नहीं, तीन लोग थे लाइक, वो भी 63, 64, 65 तक हो गया, क्योंकि 63 पे भी तीन लोग थे। तीन लोग थे, राइट राइट। तो मेरे ख्याल से आप शायद
आप नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट थे आप, राइट, हाँ है ना? ओके, तो बस वो थोड़ा सा एक फर्क रह गया कि आप बिल्कुल एकदम जहां पे आप खड़े हो आपसे जस्ट पहले आईआईसी बेंगलोर क्लोज हो गए, जस्ट जस्ट आपसे एक पहले। ओके, सो नो प्रॉब्लम। सो आई होप इट इज क्लियर। This doubt was by Sakshi. So Sakshi, overall, I just want to give you one suggestion that instead of thinking about the huge syllabus, whether I will be able to complete it or not, I am very late, I started very late, many people are ahead of me. Instead of thinking all these things, just switch your mindset and just enjoy the learning. Okay, every day, whatever concepts you are learning, something new you will be learning. You are watching the lectures, you will be learning something new. Okay, someday you will be learning maybe propositional logic. Someday you will be learning linear algebra. Okay, you will be learning independence, dependence in the vectors. Okay, right, that concepts are there, okay, in the linear algebra. So just feel happy when you start feeling happy for the learning or for the new concepts, for the new knowledge that you are getting. Okay, then you will become unstoppable. Okay, because when we start enjoying the process, then there is no laziness, there is no procrastination. Okay, nothing. Okay, you will be on the right path to top the gate exam. Okay, so I just want to tell you that just switch your mindset and start enjoying the learning. Okay, so I think Rich, I think we have in this session, I think that's enough for this session. If there is any other doubt that you want to take, like, you can take it. Otherwise we can take the remaining doubts in the next session. So this, like, it's your call. सर, और लाइक दो तीन डाउट है तो मतलब ले लेते हैं। हाँ, श्योर श्योर। ओके। ओके। सो नेक्स्ट कृष्णा का डाउट है, कृष्णा राव का, कि सर थैंक्स फॉर गाइडेंस, व्हाट वुड यू सजेस्ट अबाउट द रिवीजन एंड वीकली क्विज़ेस डीपीपी? आई अंडरस्टूड दैट पोस्ट सिलेबस कंप्लीशन आई नीड टू प्रैक्टिस पीरियड। ओके, सो वीकली क्विज़ेस के लिए आप क्या कर सकते हो? When you tackle take any particular subjects, then during subjects you solve weekly quizzes. Like if any particular subject you study from the lectures, then you go for that particular subject's weekly quiz, weekly test. Then you will find the pattern, like इस टॉपिक में से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसके लिए वीकली क्विजेस हेल्प करेंगे। सो फॉर मी आई वुड सजेस्ट कि वीकली क्विज़ेस को सब्जेक्ट के साथ में ही दो। ऐसे नहीं कि सब्जेक्ट्स पूरा हो जाए फिर बाद में सभी वीकली क्विज़ेस दे देंगे। आई डोंट थिंक कि ये सही तरीका है, क्योंकि वीकली क्विज़ेस का नाम ही वीकली क्विज़ेस इसलिए कि आप वीकली दो, मतलब वीकली मीन्स इस सब्जेक्ट्स के दौरान दो। तो वीकली क्विज़ेस को आप ऐसे टैकल करो। एंड फॉर रिवीजन, व्हाट यू कैन डू इज you can make short notes. During your revision, you have to make your short notes. And after making your short notes, do again revision from short notes plus your main notes. Like if you don't make your own notes, then you will follow some other topper's note or annotated notes. Then improve your short notes by step. Like if you miss some anything or anything in your short notes in previous version, then improve your short notes. Then again improve your short notes. तो ऐसे दो तीन मतलब तीन चार बार रिवीजन करके आपकी शॉर्ट नोट्स एक ऐसा लेवल पे आ जाएगी कि आपका पूरा सब्जेक्ट वो शॉर्ट नोट्स में कवर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स में ही रिवीजन करते रहो। फिर आपको एनोटेटेड नोट्स या फिर आपके अपने पूरे नोट्स को रिवाइज करने की जरूरत नहीं। तो रिवीजन के लिए आई वुड सजेस्ट कि शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। एंड ड्यूरिंग रिवीजन you have, like whenever you do your first revision, you have to solve each and every questions. But either there are true false questions, either there are numerical questions, there are just sentence by sentence wise question. You have to solve it, because when you solve that particular question, you are like feel like gripping that particular topic. तो रिवीजन फॉर माय ओपिनियन ऐसा करा जाता है कि कोई भी मतलब सब्जेक्ट्स है तो उसके नोट्स में मतलब पढ़ते जाओ, कोई न्यूमेरिकल आए तो खुद से सॉल्व करो। देन शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ रिवीजन के साथ में। तो ऐसे करके मतलब रिवीजन और वीकली क्विज़ेस को टैकल कर सकते हैं। ओके, देन अगेन कृष्णा का डाउट है, ऑल्सो द सिलेबस कंप्लीशन बाय सितंबर विथ 4 to 5 hours
studying every day for GATE DA is assuming that I can watch lectures at 1x period, right? ओके, अगर आप गेट टीए की बात कर रहे हो तो सितंबर तक आसानी से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वो मतलब 100% श्योर है। गेट डीए का सब्जेक्ट सितंबर में if you put 4 to 5 hours daily, then definitely you will complete the GATE DA syllabus. So yeah, you can go like in your case ki 4 to 5 hours per day in GATE for GATE. Okay. Then Meena ka doubt है, how important is it to be good at coding because there are colleges that have coding test. Okay. For at your current position, you don't have to think other than GATE exam. Whichever thing will happen after GATE, you have to think after GATE. ओके, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोडिंग आपका वीक है और आपको इम्प्रूव करना है, तो गेट के बाद आपको इनफ टाइम मिलेगा आपको कोई भी स्किल स्किल करने के लिए। अगर मैं पर्टिकुलरली मेरा बताऊँ तो मैंने भी पूरे के पूरे बीटेक में कुछ भी कोडिंग नहीं की। डीएसए वगैरह लीड कोड वगैरह मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अभी मैं उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। लाइक डेली की मैं मतलब गेट के टाइम पे मैं 7-8 आवर गेट गेट के स्टडी करने में देता था, तो अभी भी मैं वो 7-8 आवर टीएस या लीड कोड में देता हूँ। तो वो सब कुछ कवर हो जाएगा गेट के बाद। फॉर दिस पॉइंट योर मेन टारगेट शुड बी गेट, नॉट एनी अदर थिंग। ओके, साक्षी का मैसेज। Okay, I feel like I need to understand the lecture part, then make note, and that takes a lot of time. What's a better way to do it? नोट्स आप कभी मतलब ऐसा करोगे कि पहले पूरा लेक्चर देख लिया फिर नोट्स बनाई, तो उसमें टाइम डबल लगेगा। लेक्चर्स का भी टाइम लगेगा और उसके बाद नोट्स बनाने का भी टाइम लगेगा। ट्राई करो कि नोट्स लेक्चर्स के साथ में ही बनाओ। जैसे ही मतलब लेक्चर शुरू हुआ, सर ने कुछ पढ़ाया, स्टॉप करो, अपने नोट्स में लिख लो। जैसे कुछ क्वेश्चन आया, खुद से सोल्व कर लो, मतलब वीडियो को पॉज करो, खुद से सोल्व कर लो। ऐसे करके नोट्स बनाओ, क्योंकि आफ्टर में लाइक आफ्टर कोचिंग लेक्चर्स नोट्स बनाना, आई डोंट थिंक कि मतलब सही तरीका हो भी सकता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग तो होगा। ओके, सो एनी फर्दर डाउट? ओके। So in the chat, actually, students are saying, thank you so much, and this was really helpful. So really, I have, because I have been in this session since the beginning. So Rich, you have really answered all the doubts in a very calm, composed way. With patience, you have answered all the doubts. So I think, have we covered all the doubts in the chat? यस सर, चैट के तो सारे हो गए cover. Okay. So I think in the chat, all the doubts, each and every doubt we have covered, we have taken. Okay, we will continue these sessions with Rich. Okay, so you can join in the next session when we take with Rich. You can join with other toppers also. We are taking the mentorship sessions. Okay, see, in Go classes we have many students with us, and we just want to make sure that they have someone to talk to. Okay, you might be seeing that we are conducting many mentorship sessions. It's like almost, I can say, every week 4 or 5 mentorship sessions we are conducting with different toppers. The reason is very simple, that we want to give you someone to talk to. Okay, so that is the reason we have invited these toppers, and you can talk to them, you can ask your doubts. Okay, because every student is going through many emotions, I know. Even the toppers, many of you will become the topper, but still you will be going through many emotions, ups and downs. Sometimes you will be feeling very low, and at that time you need someone to talk to. That is the reason we have invited all our toppers, all our Go classes, Gate 2026 toppers, Gate CS toppers, Gate DA toppers, as a mentors. We have invited them so that you can talk to them. Okay, so I hope this session was helpful to you, and we will keep conducting mentorship sessions with Rich. Okay, so next week again there will be a mentorship session with Rich. Okay, so thank you everyone, and thank you Rich for answering all the doubts in a very patient way. Thank you, sir. Welcome.
So thank you everyone. See you in the next mentorship session. Okay, thank you. Rich, you are the host, you can end the meeting. Okay, okay. Okay, thank you everyone for joining.